کہ ایسی کیا سویدھا ہے جو ہمیں باہر ملتی ہے لیکن یہاں نہیں ملتی ہے، تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی کو یقینی بنا سکیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انگریزی کے اندر ایک کہاوت ہے "A stitch in time saves the knife"۔ ایک جو فارمر ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی پرابلم کیا ہے۔ آداب ناظرین، روبرو کا آج کا شمارہ لے کر میں یاسمین منظور آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی ہم ساؤتھ کشمیر میں ہیں اور یہاں کے لوگوں سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا مدعا مقصد ہے لوگوں کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کیا کچھ مسائل ہے یہاں کے عوام کے، اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ان کے مسائل ہم اعلیٰ حکام تک پہنچائیں اور ان کا جلد سے جلد ازالہ ہو۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کنٹری اپنے ملک کی پروگریس چاہتے ہیں، اس کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ بہت زیادہ دھیان دیں۔ اگر انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ ہوگی تو بظاہر طور پہ بچے کی کوالٹی ایجوکیشن پہ بھی زبردست امپرومنٹ ہوگی۔ why our youth are inspired, they are going to outside our state but not stay inside our state۔ تو چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ایسی فیسلٹیز اویلیبل رکھے تاکہ جو ہمارے یہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے ملک سے جا کے کسی دوسرے ملک میں اپنا ایڈمیشن نہ لینا پڑے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو کالجز ہیں وہاں پر ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پی جی کرتے ہیں، لیکن جب ہم کلگام جاتے تھے وہاں پر صرف گریجویشن ہی ہو پاتی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان کا ایڈمیشن کسی گورنمنٹ پرائمری اسکول میں کراؤں، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن ان کو مل کے، لیکن استاد تو بالکل قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود بھی ایک پیرنٹ ہوں، میں ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی ہوں۔ اس سال میں نے بھی اپنے ایک بچے کا، جو میرا چھوٹا بچہ ہے، میں نے اس کا ایڈمیشن اپنے گاؤں کے گورنمنٹ مڈل اسکول مٹی بگ میں کیا۔ ایجوکیشن سیکٹر کی بات چل رہی ہے تو وہاں پہ سپورٹس کا سیکشن ہونا لازمی ہے۔ سپورٹس کی جب ہم بات کریں گے تو کس حد تک ترقی یافتہ دیکھتے ہیں آپ سپورٹس سیکٹر کو اپنے ضلع میں؟ میم سپورٹس ریلیٹ جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ یا ہمارے علاقے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے میم۔ ہیئر از اے لاٹ آف ٹیلنٹ میم، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں۔ جو یہاں کی یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ اگر میں یہاں پر ہمارا ایک بھائی ہے جو کہ بیڈمنٹن کھیلتا ہے، جیسے کہ ابھی ثاقب جو میرا بھائی جیسا ہے، جیسا یہ بہت اچھا بیڈمنٹن کھیلتا ہے میم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ٹیلنٹ ہی کافی نہیں ہے۔ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، جو کہ صرف ایک مطلب سپورٹس مین ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک سپورٹس مین کی جو پیشن ہے وہ کس قدر ہوتی ہے۔ ہی از ویری پیشنیٹڈ ان دا بیڈمنٹن۔ میں ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں وہ یہاں آئے اور ہمارے علاقے کا جائزہ لے اور یہاں کی جو یوتھ ہے ان سے انٹریکٹ ہو اور ان سے ان کی رائے لے کہ اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے، خاص کر ان کا جو ٹیلنٹ ہے سپورٹس کے ریلیٹ، وہ دیکھے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ کس قدر ہے اور ان کو ہر فیلڈ میں سپورٹ کرے۔ بقول شاعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سپورٹس، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو بھی زیادہ دھیان دیا جائے تاکہ جو ہمارے یوتھ ہے، جو کہ آنے والی جنریشن، ہماری فیوچر جنریشن ہے، وہ ان برے چیزوں سے دور رہے۔ جیسے کہ آج ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی ایک گندگی پھیلی ہے ڈرگس کے حوالے سے، تو ہمارا یوتھ دن بدن اس کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے دیش کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ تو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ یوتھ کو دیکھے جن میں ٹیلنٹ ہو۔ میں خود بیڈمنٹن ریپرزینٹ کرتا ہوں، مجھے 5 سال ہوئے کلگام ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن میں ریپرزینٹ کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں آئی کہ جو ہمیں یہاں سے لے کے آگے تک لے جا سکے تاکہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ کیا پتہ کل ہم ہی میں سے کوئی ہو جو کل کو کشمیر ریپرزینٹ کرے یا کل کو انڈیا ریپرزینٹ کرے۔ ہم یہ ایڈمنسٹریشن سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر چاہے یہاں جائزہ لے،
ब्रिजबरारा, हम ब्रिजबरारा की बात करें तो वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पर एक इंडोर अवेलेबल है, उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर इंडोर अवेलेबल है। तो हमारे लिए यहाँ पर कुलगाम में या यारीपोरा में चाहिए था कि एक इंडोर मतलब यहाँ पर इनिशिएट किया जाए, ताकि जो हमारे यूथ में जो ये टैलेंट है ये ज़ाया ना हो। एज ए सिटीज़न मैं ये कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें जैसा कि अभी यहाँ पे बात हो चुकी थी एजुकेशन की, या इसमें हेल्थ सेक्टर है, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ अस हैव द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, तो इनके लिए हमें कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इन चंद चीज़ों के हवाले से, या पानी की जहाँ तक बात है, तो इन चंद चीज़ों के हवाले से मुझे आजकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। मैं अभी आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा अपने गांव मट्टीबुग के हवाले से। मट्टीबुग अगर मुझसे कहा जाए कि आप उसको डिफ़ाइन करें तो मैं कहूँगा इट्स अ विलेज ऑफ स्प्रिंग्स, इट्स अ विलेज ऑफ चिनार ट्रीज। तो वहाँ स्प्रिंग्स को रेस्टोर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है इस वक्त, और कुछ हद तक इस काम को पाए तकमील तक भी पहुँचाया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट इन स्प्रिंग्स को रेस्टोर करके या कैनाल्स को रेस्टोर करके, रिवर्स को रेस्टोर करके एक बड़ा स्टेप ले रही है। तो इस हवाले से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक नज़र आ रही है। जनाब नंबरदार खरब्यारा आज वोत 14 वरी इंतजार करान, 2 किलोमीटर सड़क, 2 किलोमीटर बजाय गो आज 14 वरी, आज 1 किलोमीटर मेगडम गो 14 वरी 1 किलोमीटर। वो वोत आज तकरीबन 3 रेत तथ काल सुबह गसान, ओतान दपान ना यह गुमुत मंजूर। वो काल सुबह गसान, काल सुबह वन दपान कहें आज युत यह सा यह अत बजटे पोलन हुंद मसल। आज वोत 3 वरी गसान, काल वन सुबह, सुबह वन काल, लास्टस वोनुक दोपुक है यह नसा यह सा यह स्कीम अस करो कस नश गो वन पन गसान बिजली डिपार्टमेंट एग्जनस गए, AEES गए, सारी वन दपान स्कीम ना वो कत अनो। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे जो हमारा यारीपोरा का हॉस्पिटल है, एक मामूली से बीमारी के लिए वो हमें कुलगाम रेफ़र करते हैं, वो हमें श्रीनगर रेफ़र करते हैं। एक मामूली सी बीमारी होती है, आप जाइए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, शायद कई साल पहले भी वही था और आज भी वही है। अगर किसी को मामूली सा कोई तकलीफ हो तो वहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई इलाज हो रहा है कि हमें फिर प्राइवेट जाना पड़ता है। उसके आसपास में देखिए आप, हमारे तहसील हेडक्वार्टर जो है, जो सारे तहसील की निगरानी करता है, उनका ऑफिस देख लीजिए, जैसा वो किसी कबाड़ खाने में बेचारे बैठे हुए हैं। तो जब उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तहसीलदार खुद किसी अच्छी बिल्डिंग में, एक अच्छे ऑफिस में नहीं है, तो शायद उसकी जो तासीर है वो दूसरे इलाकों पे भी नहीं पड़ती है। जहाँ पे आप देखते हैं हर गाड़ी का फीस लगता है सुबह सुबह, मुझे लगता है बड़ी गाड़ियों का 50 रुपया लगता है, छोटी गाड़ियों का 10 रुपया लगता है। फिर आप जाए यारीपोरा टाउन में आ जाए, आपको टॉयलेट नहीं मिलेगी। आपको जहाँ पे आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, आपको यारीपोरा में टॉयलेट नहीं मिलेगी। आप देखिए कहाँ पे है, टाउन में जाके आप देखिए मेन मार्केट जहाँ सोमू स्टैंड है, तो जहाँ नया बस अड्डा बनाया गया है तो वहाँ पे एक टॉयलेट है, वो बनाई गई, लेकिन उसमें आप बोलते हैं कि ताला लगा है कि उसमें पानी नहीं है। मतलब 4-5 हज़ार का अगर उसमें मोटर लग जाएगा तो पानी हो जाएगा, तो उसमें कौन सा बड़ा मसला है ये। लेकिन फिर आप देखते हो, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं ऐसे। जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ चीज़ें हो रहे हैं गाँव में, मतलब ये नहरें शहरें बन रही है, तो ये चीज़ें अब अपने आला हुकाम तक पहुँचाइए कि यारीपोरा में एक ये मतलब हेल्थ सिस्टम जो है ये ठीक होना चाहिए। आपने ये ट्रैफिक जाम भी लगता है, जैसे गवर साहब भी बोल रहे हैं कि ट्रैफिक की यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। जैसे सुबह गाड़ी में इंसान निकलता है, 1 घंटा अड्डे में फंस जाता है। तो ये आप अपने आला हुकाम तक पहुँचाएँ ये बातें, तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम गाँव में रहते हैं, देहात है यहाँ पे, तो इन देहातों में मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर जो पॉपुलेशन है वो ज़मींदारी के फील्ड के साथ मुंसलिक है।
तो इस हवाले से रोड कनेक्टिविटी का एक अच्छा अमल हो रहा है। यहाँ पे वाइडनिंग हो रही है, रोड्स को अपग्रेड किया जा रहा है, मैग्नेटाइजेशन का अमल, ब्लैक टॉप किया जा रहा है रोड्स को। तो इस हवाले से मैं बड़ा मुतमईन फील कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में हमें रोड्स के हवाले से एक अच्छी चीज़ मिलने वाली है। जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे आप देखो तो स्कूल का ग्राउंड है, कोई बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ के रोड्स देखो, आंखें खोलो, यहाँ के रोड्स देखो तो यहाँ पे लोग रोज जाम लगता है। एक गाड़ी रोड में रुकती है तो जाम लग जाता है, घंटों तक जाम लग जाता है। तो कोई यहाँ पे आप देखो, ये म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कोई टॉयलेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा टाउन है, कोई टॉयलेट अवेलेबल नहीं है। तो हम डीसी साहब से, हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि खुद ध्यान दे। हम लोग क्या ध्यान दे, हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आप इनके माध्यम से तो खुदारा आप देखो कहाँ डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे ये जो कैनाल गुजर रही है, ये तकरीबन 1000 ऑफ कैनाल जो लैंड है उसको इरिगेट करती है। अरबों रुपयों का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट यहाँ से जनरेट कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई दहाइयाँ पहले इसकी ड्रेजिंग हुई है और मामूली पानी आता है तो हमारी सड़कें, हमारा सब कुछ वैरान हो जाता है। तो इसके अलावा अगर मैं चूंकि यारीपुरा, पर्टिकुलर यारीपुरा की बात करता हूं, मुमकिन है कि बाकी यारीपुरा के अलावा जितने भी तहसील हेडक्वार्टर्स से उनकी तरक्की अच्छी होगी, लेकिन यारीपुरा के बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारे मसाइल। खासकर अगर आप यारीपुरा बाजार में अड्डे में देखें तो एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। मामूली साइकिल वाला आता है, कोई एक शख्स कोई कुछ लेने के लिए जाता है तो ट्रैफिक जामिंग का बहुत बड़ा खर्चा रहता है। वहाँ पे 2 पुल लगे हुए हैं, वो 2 पुल तकरीबन 20 या 30 साल पहले लगे हुए हैं और एक ही गाड़ी तकरीबन एक वक्त से क्रॉस कर सकती है। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की जो ट्रैफिक रूल है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। रोड जो है यहाँ पे मतलब वो बहुत तंग छोटे होते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे मतलब यहाँ पे ध्यान दे, रोड्स को बड़े बनाइए। और जो हमारी यहाँ के जो ग्राउंड्स है, हमें दिक्कत आती है खेलने में। यहाँ की जो ग्राउंड, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इर्द गिर्द जो है ऑर्चिड्स हैं, तो फिर जब यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे तो यहाँ पे बहुत ही नुकसान होता था ऑर्चिड्स में। तो अक्सर यहाँ पे उन पे भी लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से फिर ये अक्सर बंद ही रहता था और जो यूथ का टैलेंट है वो ज़ाया होता है। तो फिर कुछ टाइम हुआ है कि ये खुला रहता है, लेकिन 4 बजे के ऑनवर्ड्स तब तक ये यहाँ पे खुला नहीं होता है। अब यहाँ पे आप ही बोले कि अक्सर यहाँ पे जानते भी होंगे यारीपुरा में बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर डेज में फिर होते हैं, मतलब संडे होगी या कोई हॉलीडे होगा, उस टाइम पे वो फिर यहाँ पे खेला जाता है। वरना यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं होता है क्योंकि ये बंद होता है ग्राउंड। तो आप देख रहे हैं कि ये कोई नहीं बता रहा है कि यूथ पीएचडी स्कॉलर्स आ रहे हैं तो बैठ रहे हैं घर में, तो फिर इसी इंतजार में लगे रहते हैं कि गवर्नमेंट कब पोस्ट निकालेगी और उसके बाद हम फार्म सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर उसमें भी बहुत टाइम लगता है, सालों लगते हैं, उसके बाद वो स्क्रैप ही हो जाता है जो रिक्रूटमेंट। तो आप देख लीजिए कि आफ्टर जो एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब जब से आए हैं, तो मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जब क्या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो एक युवा को, एक यूथ को मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जहां आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात छेड़ी कि हमारे एजुकेटेड यूथ जो है जो गवर्नमेंट पोस्ट का वेट कर रहे हैं, तो बजाय उसके हमारे जो गवर्नमेंट है अब इंतजामिया की तरफ से उनको काफ़ी सारी स्कीम्स मुहैया की जाती है, जिसकी वजह से वो अपना एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए मैम, एक्चुअली ये है कि जो पढ़ा लिखा यूथ है, सबसे पहले जो हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर जो आए हैं, वहाँ पर जो पीएचडी करके आए हैं, वो इस कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्मा रहे हैं कि हम अपना थोड़ा सा यूनिट यानी कि स्टार्ट करेंगे तो क्या लोग कहेंगे, हमें ताना तो देंगे। देखिए आप ये यूनिवर्सिटी से आया तो आप देखो क्या कर रहा है, पकौड़े बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें साथ यूथ को यानी कि हमें एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हमें अपने टांगों पे खड़ा होना है और दिखाना है, ताकि अपनी जो इकोनॉमी जो है हमें खुद बूस्ट करनी पड़ेगी।
لیکن گورنمنٹ سکیمز کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے کو تو اپنی جو لینڈ ہوتی ہے وہ پہلے مارٹگیج رکھنی پڑتی ہے. اس کی مارٹگیج رکھنے کے بعد پھر کئی مہینے لگتے ہیں ہمارے کو لون سینکشن کرنے میں. تو جب اور وہ بھی زیادہ ہر کسی کے پاس اب تو میوٹیشن نہیں ہے, ہر کسی کے پاس انتقال تو نہیں ہے. کسی کے پاس جو ہے باپ دادا کی جو زمین ہوتی ہے وہ انہی کے نام ہوتی ہے, تو وہ بیچارہ اس میں بھی یعنی کہ پریشان رہتا ہے. تو اب ایک یوتھ کیا کرے گے؟ حالانکہ نریگا کے حوالے سے ہماری گاؤں کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نریگا میں جب تک مس مینجمنٹ کا جو عنصر ہے وہ ختم نہیں ہوگا, گاؤں کی جو پوزیشن ہے وہ یکسر نہیں بدل جائے گی. حالانکہ گورنمنٹ اوپر سے بہت سارے پیسے دیتی ہیں, لیکن ایک تو پلاننگ میں وہاں پہ کچھ فالٹ ہے نریگا میں, دوسرا تو جو مس مینجمنٹ ہے یا جو پیسے کا جو خرد برد ہے وہ جب تک ختم نہیں ہو جائے گا, گاؤں کے لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے ان پہ گورنمنٹ نہیں اتر سکے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو لائیں, ہم ٹرانسپیرنسی کو لائے, اور جو کرپشن کا عنصر چاہے کسی بھی دفتر میں کیوں نہ ہو, حالانکہ آج کل جو ملازمین ہیں وہ بڑی محتاط ہو گئے ہیں اس حوالے سے, وہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ان سبھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی پیسہ اوپر سے آتا ہے عوام کے لیے وہ عوام اس کا فائدہ اٹھائے اور لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ کم از کم حل ہو جائے. بہت سمے پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو ایز اے ولیجر آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جب ہم شہر جاتے تھے تو شہر میں جو سویدھا ہم دیکھتے تھے, جو فیسلٹیز ہم دیکھتے تھے, تو ہمیں واپس لوٹ کر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہم دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں, تو ہمارے لیے ان فیسلٹیز کا ہونا ایک ڈسٹنٹ ڈریم سے کم نہیں تھا. یہ ایک ایک خواب تھا ہمارے لیے. لیکن اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کیمپس یہاں پہ یونیورسٹی بھی بنی ہے اور ساتھ میں ایک میڈیکل کالج بھی یہاں عمل میں لایا گیا ہے, تو بہت اچھی سویدھا ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے مل رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی ہمیں داد دینی پڑے گی. ایک اوور نائٹ پورا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ راتوں رات ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بہت کام کیا جا رہا ہے اور ہمیں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا پڑے گا ایڈمنسٹریشن کو کہ بڑے بڑے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور آنے والا جو ہمارا وقت ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بڑا برائٹ ہونے والا ہے اور خوشائند کا اقدامات ہو رہے ہیں, بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں, تو ہم اس حوالے سے اپنے اطمینان کو ظاہر کرتے ہیں. یہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت آئی ہیں, جیسے کہ جو یہاں کی پرائمری سکولز تھے اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈریز, آج کل ہم جیسے ایل جی حکومت کی وجہ سے ہم بول سکتے ہیں کہ جو یہ جہاں کی ہم بات کر سکتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں, اب ہم گورنمنٹ سکولز میں بھی تعلیم یہاں پہ دھیان نہیں تھا, جب سے ایل جی حکومت آئی ہے تب سے اب دھیان رہتا ہے یہاں پہ. جیسے کہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہے یا یونیورسٹی لیول تک جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے, تو ایسی ہمارے پاس کافی ساری ایگزامپلس ہیں ایسے یوتھ کی, ایسے بچوں کی جن کی ہائر ایجوکیشن ہے, اور کچھ ایسے بھی جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, لیکن آج ہمارے سامنے وہ بزنس ٹائکون کی طرح کھڑے ہیں اور باقیوں کو بھی اپنے یونٹ میں وہ روزگار دے رہے ہیں. جہاں ہم چھوٹے چھوٹے بزنس یونٹس کی بات کرتے, چھوٹے چھوٹے بزنس یونٹ سے ہی وہ آگے آئیں گے, تو اس حوالے سے کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک یوتھ پہ ڈپینڈ ہے, اس کو اپنا مائنڈ سیٹ پریپیئر کرنا ہے کہ مجھے کس لیول کا اب بزنس کرنا ہے, مجھے کیا چیز آگے رکھنی ہے, کیونکہ ایک ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے بزنس مین وہ زیادہ گرو ہو سکتا ہے اگر ہم کمپیئر کریں گے ایک ان ایجوکیٹڈ یوتھ کو اس کے ساتھ. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ یوتھ کو اپنا ٹیبل بنانا چاہیے تاکہ لوگ اس کے پاس روزگار حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ بات صحیح ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بزنس یونٹ سے بڑے ٹائکون بنتے ہیں, وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, وہ سبھی نہیں ہوتے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو MBBS جو کرنے جاتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچے چاہے قزاقستان جاتے ہیں, یوکرین جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں وغیرہ, کیا وہ غریب بچہ جا سکتا ہے وہاں پر؟ اس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ ٹیلنٹ ضائع ہوتا ہے. اس کو انکریجمنٹ کی صرف ضرورت نہیں ہے, اس کو دان بھی چاہیے, اس کو پیسہ بھی چاہیے, کہ وہ کون دے گا اس کو. تو آپ دیکھ لیجئے, اب PhD اسکالرس کی بات کی, کتنی اچھی بات ہوتی. ونن کاشر پٹ کہ بڑی استان مگر شفا ورٲیی.
तो आप देख लीजिए, मैं खुद गया हूं बाहर, मैंने बाहर पीजी किया है, मैंने इतना छोटा यानी कि उसको आप दूसरी मंजिल बना दीजिए तो वही यानी कि कॉलेज था, वहां पर 5-6 हजार लोग पीजी करते थे। जब हम कुलगाम कॉलेज जाते हैं वहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, लेकिन पीजी प्रोग्राम नहीं है। क्या हमारी जो यूथ है जो पीएचडी करके हैं या पोस्ट डॉक करके हैं, क्या वो वहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं? अभी जो हमारा हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मैं इसकी इस वक्त, चूंकि अगर आप देखेंगे जितने भी ऑर्चार्ड्स या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स हैं उनकी तादाद लाखों में है। तकरीबन 35 लाख पीपल जो है कश्मीर में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है हॉर्टिकल्चर से। लेकिन मार्केट रेट देखिए आप, मार्केट रेट पहले छोड़िए, आप क्वालिटी प्रोडक्ट देखिए। हमारा अल्टरनेरिया, हमारा कीड़ा वगैरह वो आता रहता है हमारे बागों में, लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से लैब्स, साइंटिफिक लैब्स एस्टैब्लिश करनी चाहिए ताकि बर वक्त जब भी कोई फार्मर ये प्रॉब्लम फेस करे उसी वक्त साइंसदानों की एक टीम वहां पे आ जाए ताकि उस बीमारी का इजाला करे। पिछले साल जो पेटी हम 1300 में बेच रहे हैं आज 600 में बेच रहे हैं। अगर यही हालत रहेगी तो मैं समझता हूं कि जल्द वो वक्त आने वाला है जब कश्मीर का फार्मर, जब हमारे इलाके का फार्मर सुसाइड करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी इतनी नहीं है। पहले पोटाश को देते थे, डाई जो आप खाद देते थे उसमें सब्सिडी थी, इस साल तो आपने वो भी खत्म कर ली। तो अगर आपको ये जो किसान है उसकी समस्या हल करनी है, उसके मसाइल हल करनी है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी देना है। और जो आपके साइंसदान अभी ऑफिसर्स में बैठे हैं, लैब्स में बैठे हैं, उनको वहां से निकालना है और उनको बागों में भेजना है और देखना वहां पे कि एक जो फार्मर है उसका मसला क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, जैसे कि आप यहाँ से अभी आए होंगे तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे बहुत नीचे बहुत बदबू आती है, जहाँ पे वो गार्बेज है वहाँ पे बहुत। जब हम सुबह आते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कत होती है कि आप सुबह फ्रेश माइंड होके आते हैं, हम चाहते हैं कि हम स्कूल आएँ, बट जब हम वहाँ पे पहुँचते कि हमारा दिल करता है कि अब हम यहीं से वापस जाए, क्योंकि जहाँ पे वो गार्बेज है वहाँ पे बहुत बदबू आती है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो आते जाते वहाँ पे लोग हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं ये एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए जिसको मतलब जहाँ से वो लोग आते जाते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। करप्शन की जहां बात करेंगे तो किस हद तक कमी रोनमा हुई है अगर हम पिछले 3 साल की बात करेंगे जब से एलजी हुकूमत वजूद में आई है? करप्शन जो है वो एक लानत है, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बिद्दत है। और हमारे यहाँ अक्सर हम देखते थे, अक्सर डिपार्टमेंट्स में जहाँ पब्लिक डीलिंग होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी। और करप्शन की वजह से जो मुस्तहिक अफराद होते हैं किसी जॉब के या किसी भी काम के जो लायक अफराद होते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, और जो नाकारा लोग होते हैं वो करप्शन की वजह से आगे बढ़ते हैं, जिसका असर हमारे देश के मुस्तकबिल पर भी पड़ता है। जो हमारा टैलेंट होता है या जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनका टैलेंट ज़ाया हो जाता है। अगर हम करप्शन की बात करें तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन है हमारी सोसाइटी में, खास करके लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए करप्शन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो एक टैलेंट, जिसमें एक टैलेंट होता है वो वहीं पे गिर जाता है। टैलेंट जिसमें होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द करप्शन। क्योंकि करप्शन अक्सर अगर हम एक बात देखेंगे, करप्शन वही देते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता है, जो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो करप्शन देते हैं। लेकिन जिसमें टैलेंट होता है, वो जो गरीब होता है, जिसके पास टैलेंट होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पीछे ही रहता है। और जो हमारे कंट्री है उसमें टैलेंट की कमी रहती है। क्या आपको लगता है कि पिछले 3 सालों में हर एक डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आई है? अगर हम डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी आई है। जो अक्सर अगर हम देखते हैं, अक्सर डिपार्टमेंट्स में ये बात हम नोटिस करते थे कि वहाँ पे करप्शन होती है, लेकिन अगर अब हम देखेंगे तो थोड़ा सुधार आया है कि करप्शन अब ज़्यादा नहीं है।
इसी के साथ रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर। अधिक